Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy, and I am hoping, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तबीयत में बढ़िया हो. ओके, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है. अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो लास्ट के 2 लेक्चर्स बाकी है. टिल नाउ अब तक हमने क्या कंप्लीट किया है? काफ़ी चीज़ें कंप्लीट की है. हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पर एक ड्रॉई था, एक ड्रॉवर था और कुछ सिचुएशन उनके बीच में हुआ था, कुछ सिचुएशन. फिर हमने किया एक ड्रॉई, बहुत ज़्यादा ड्रॉइज़, एक ड्रॉवर और काफ़ी अलग अलग ड्रॉइज़ और सिचुएशंस अलग अलग थी. आज का क्वेश्चन थोड़ा दोनों का कॉम्बिनेशन है. एक ही ड्रॉवर है, एक ही ड्रॉई है, पर कंडीशंस उनके बीच में अलग अलग है. ओके, मेरा मतलब क्या है? क्वेश्चन दिखा देता हूँ और आपको समझ में आ जाएगा. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि मल्टीपल डायग्राम्स के द्वारा ओके हम ये कवर अप करेंगे. ये है एक्चुअली इलस्ट्रेशन 1 और जो अगले लेक्चर में हम मिलेंगे वो है इलस्ट्रेशन 2. मतलब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के श्रृंखला में, सीरीज में सबसे पहले पवित्र शास्त्र में कहा गया है कि जो पहला आता है वो आखिर हो जाएगा और जो आखिर आता है वो पहला हो जाएगा. ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये पहले सम है, बट सिखाने के लिए मैं आखिर में पढ़ा रहा हूँ. ओके, पढ़ लेते हैं. बड़े क्लियरली आपको समझ में आएगा. क्या आप ड्रॉवर या ड्रॉई सॉल्व कर रहे हो? ऊपर आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक फॉर 25,000. आकाश ड्रॉवर है, दीपक ड्रॉई. On 23rd December 2019 for 3 months, Deepak accepted the same and returned it to Akash. On the due date, 3 महीने 3 दिन बाद ड्यू डेट आएगा जो आपको और मुझको कैलकुलेट करना है. The bill was duly honored, ये इंपॉर्टेंट है. दीपक ने ड्यू डेट पे पैसे दिए, अच्छी बात है. Give journal entries in the books of Akash and Deepak, very important. इन द बुक्स ऑफ आकाश एंड दीपक, आकाश भी बनो ड्रॉवर, दीपक भी बनो ड्रॉई. अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो सिचुएशन अलग है. सिचुएशन ए बी से अलग है, सी से अलग है, डी से अलग है. ए में क्या लिखा है? इफ आकाश मतलब ड्रॉवर रिटेन्ड द बिल टिल मैच्योरिटी, उसने बिल अपने पास 3 महीने के लिए रखा, तो ऑनर वाली एंट्री क्या होगी? B. If Akash discounted the bill with his bank at 6% on the same day, अगर आकाश ने बिल बैंक को 6% के लिए बेचा तो उसकी एक एंट्री आएगी.
और फिर आपको सोचना है और समझना है कि फिर ड्यू डेट पे क्या एंट्री आएगी, बिकॉज सिचुएशन 1 में ड्यू डेट तक आकाश के पास बिल है, सिचुएशन 2 में बी ड्यू डेट को बिल बैंक के पास है। सिचुएशन 3 पढ़ो, इफ आकाश सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23 दिसंबर, एक डेट दिया है, बट आपको ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट द बिल इन द थर्ड सिचुएशन इज विद द कलेक्शन पीपल, तो फिर उसका ऑनर अलग रहेगा। एंड पॉइंट नंबर डी, इफ यू रीड इट सेज इफ आकाश एंडोर्स्ड द बिल टू हिज क्रेडिटर वीरेन। सो एवरीबडी, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है समझना कि ड्यू डेट पे बिल किसके पास है। ए में आकाश के पास है, बी में वो डिस्काउंटिंग के लिए गया, सी में वो कलेक्शन के लिए गया, 4 में वो वीरेन के पास है। तो घबराना मत, टेंशन मत लेना, बिकॉज द डायग्राम टेक्निक, द एरोबाजी इज गोइंग टू खुलासा एवरीथिंग फॉर यू। ओके, तो ज़्यादा कुछ प्रेशर यहाँ पे डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। पहले हम आकाश बनकर सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, उसके बाद में टोपी बदलेंगे और हम दीपक बन जाएंगे और वही पूरी कहानी दीपक के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करेंगे। तो राइट नाउ यू ओनली बी आकाश, सो वी रिक्वायर अ जर्नल ऑफ आकाश विच इज द ड्रॉवर जर्नी, अराउंड 2 पेज लग जाएगा। ओके, देर आर मल्टीपल प्लेसेस, काफ़ी ऐसे सिचुएशंस है प्रॉब्लम में जहाँ पे नो एंट्री है, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं है, कोई डेबिट नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है। मैं लिख के बताऊंगा बराबर, ताकि आप भी लिख लेना, तो वो क्लियर रहेगा। अच्छा, ये दिन पे इसकी बुक में ऐसा हुआ, उसके बुक में कुछ नहीं हुआ, बिता देता हूँ। द वेरी फर्स्ट थिंग इन द बुक्स ऑफ आकाश ड्रॉवर, आकाश ड्रू अ बिल ऑन दीपक 25,000 का 23 दिसंबर 2019 को, 3 महीने का, और दीपक ने ये बिल साइन किया 23 दिसंबर 2019। ओके, ये है हमारी दुकान, ये है दीपक जो ड्रॉई है, और हमने बिल बनाया, उसने साइन करके दे दिया। बिल रिसीवेबल टू दीपक, सिंपल एंट्री है, पहला वाला एंट्री, तो वो मैं लिख रहा हूँ 23 दिसंबर 19। ऑल थ्रू आउट द प्रॉब्लम मैं ईयर मेंशन करूँगा, इसके लिए मैंने न्यूमरल्स में लिखा है ताकि मैं वो फिट कर सकूँ। ओके, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, आप अभी के लिए तो ध्यान देना। ओके, बाद में आपको जैसे ही टाइम मिले आप अपने आप से इसको प्रैक्टिस करना। बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सिंपल, हमने बिल बनाया, उसने साइन करके दे दिया। राइट नाउ उन्होंने कहा ड्यू डेट। ओके, सबसे बड़ा सवाल कि ये ड्यू डेट कब आता है। देख, 23 दिसंबर को 2019 3 महीने का बिल बना है, तो 3 महीना 3 दिन जोड़ना पड़ेगा। When you do this जोड़ना, you get 26, 15, क्योंकि 12 + 3 15 होते हैं 2019। बट यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, आपको भी ये पता होना चाहिए कि 15वां महीना नहीं होता। तो 15वां महीना कौन सा महीना है? 12 के बाद दोबारा 13, 14, 15, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब एक्चुअली आप 26 मार्च 2020 की बात कर रहे हो। ये ड्यू डेट है, यहाँ पर अपने दिमाग में फिट करना इसे। ऑल्सो सोल्यूशन के टाइम पे तो लिखना ही है, बट याद रखना 26 मार्च 2020। ओके, सिचुएशन ए में क्या हुआ? ओके, अभी तक बिल बन गया। सिचुएशन ए बोलता है आपने बिल रखा, तो अच्छा मतलब किसी को दिया नहीं, किसी को दिया नहीं। ड्यू डेट पे क्या होगा? आकाश ने, सॉरी दीपक ने पैसे दे दिए। अच्छा, तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिल गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सो दिस इज पॉइंट नंबर ए का आंसर, पॉइंट नंबर ए का आंसर। वैसे ही बी का आंसर आएगा, सी का आंसर आएगा, डी का आंसर आएगा। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, दीपक ने पैसे दिए, दीपक ने पूरे प्रॉब्लम में पैसे दिए। फर्क इतना ही है कि बिल किसके पास था?
ए में अपने पास था, अब बी में किसके पास है? पहले पॉइंट पर नंबर बी पढ़ लो। इफ आकाश डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंक ऑन द सेम डे 6% के लिए 3 महीने का बिल आपने बैंक को बेचा। ओके, डायग्राम इज ऑलवेज वेरी गुड फॉर मी टू एक्सप्लेन टू यू। क्या किया? अरे वो हमने सेम डे पे बैंक को बेच दिया, बैंक डेबिट बराबर बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बीच में डिस्काउंट आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्काउंट कितना है उसके लिए एक फॉर्मूला है, ऊपर देखो, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, तीनों लिखा है। 375 का डिस्काउंट आता है, 375। ओके, अभी आपको क्या करना है? कुछ खास नहीं, आपको ये जर्नल एंट्री पास करनी है ऑन द सेम डे। ये है पॉइंट नंबर बी। ड्यू डेट बाद में, सेम डेट मतलब 23 दिसंबर को you have to pass the journal entry for discounting. This is point number B. Okay, bank account debit, discount account debit to bill receivable. Bill receivable is 25,000, discount is 375. The balance is what comes in bank, 24,625, being bill discounted at 6% per annum. ये हुआ 23 दिसंबर को। अब आपको ये सोचना है और देखना और अंडरस्टैंड करना है कि ड्यू डेट को क्या हुआ। दीपक ने पैसे दिए, बट दीपक ने किसको पैसे दिए? हाँ, तो थोड़ा धीरे से, धीमे धीमे देखो, ड्यू डेट पे 3 महीने बाद होता क्या है? वो बैंक दीपक को बिल देता है, साफ बिल रखो, और दीपक रिटर्न में पैसा बैंक को देता है। सो आई रिपीट माई सेल्फ, आपको क्या अंडरस्टैंड करना है कि बैंक ने दीपक को बिल दिया फॉर आकाश। आई रिपीट, आकाश के लिए वो बोलेगा मेरे को क्या करना है इसके साथ, बराबर, इट डज नॉट इफेक्ट हिज बिजनेस। दीपक ने उनको पैसा दिया, पेमेंट। आकाश बोलेगा मुझको क्या करना है, ये जो है ये भी मेरे बिजनेस को इफेक्ट नहीं करता। एंड वेरी सिंपल, इसके आगे कुछ नहीं। आप नहीं बोल सकते अरे बैंक मेरे को पैसा दे, नहीं, ये कलेक्शन वाला बैंक नहीं है। कलेक्शन वाला बैंक होता तो आपको पैसा मिलता। ये कहानी पॉइंट नंबर बी की यही खत्म हो जाती है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, मैं सिर्फ बता रहा हूं दैट ऑन 26 मार्च ऐसा कुछ हो रहा है विच इज नॉट इफेक्टिंग द बिजनेस ऑफ आकाश। तो ऑन 26 मार्च माई डियर, पॉइंट नंबर बी में कोई भी एंट्री नहीं है, नो एंट्री। लिख के बता रहा हूं सो दैट यू आर वेरी क्लियर किस दिन पे किसने क्या देखा, क्या लिखा, क्या फीलिंग की और क्या डेबिट और क्रेडिट आया। पॉइंट नंबर बी खत्म। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी में आकाश ने क्या किया? इफ आकाश सेंट द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 23 दिसंबर 2019, उसी दिन पर आकाश ने बिल कलेक्शन वालों को दिया। तो नाउ प्लीज नोट, बैंक लिखा है बट ऊपर है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। दिस इज योर एंट्री फॉर पॉइंट नंबर सी, द फर्स्ट एंट्री ऑन 23 दिसंबर, सिंपल एंट्री, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल। आई रिपीट, ज़्यादा सोचना मत, ये तुम्हारा बड़ा सिंपल एंट्री है पॉइंट नंबर सी का, फर्स्ट एंट्री, बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन। नाउ यू हैव टू थिंक, अच्छा मतलब अभी कलेक्शन वालों के पास है, अब ड्यू डेट को क्या होगा? बिकॉज ड्यू डेट को जो होगा वो सेम है बट बिल पोजीशन चेंज कर रहा है, पहले मेरे पास था, फिर वो बैंक के पास था, फिर वो कलेक्शन वाले के पास है। ओके, नाउ ऑन द ड्यू डेट कुछ स्पेशल होता है। क्या स्पेशल होता है? वेल, कलेक्शन वाला बिल दीपक को देता है, अपने बिजनेस को टच नहीं करता। दीपक इन रिटर्न उनको पैसे देता है, अपने बिजनेस को टच नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं करता, नो एंट्री। फिर सोचना है कि कलेक्शन वाला मेरे को पैसा देगा। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पैसा देगा क्योंकि उनका काम था कलेक्ट करके, वसूली करके हमको देना, तो दिया ना। कैश अकाउंट डेबिट
टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। टेक्स्ट बुक में क्योंकि उन्होंने बैंक लिखा है जो सही है, गलत बिल्कुल नहीं है। आप कैश बैंक दोनों लिख सकते हो क्योंकि नॉर्मली बैंक जो पैसा आपको देता है वो आपके घर पे नहीं ला के देगा, वो खाते में डाल देता है। तो बैंक लिखना भी सही है, कोई गलत नहीं है। सो ऑन द ड्यू डेट आपको सी डिस्काउंटिंग वाले बैंक से उम्मीद नहीं रखनी है, कलेक्शन वाले बैंक से पक्का उम्मीद रखना है। सो माई नेक्स्ट जर्नल एंट्री ऑन द ड्यू डेट इज द फॉलोइंग। कैश बैंक अकाउंट मैंने दोनों लिख दिया, ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 25,000। कभी कभी बैंक चार्जेस भी लेता है बट वो दिया नहीं है तो उसका टेंशन आप ना लो। बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ऑनर्ड, ओके, आप वो एक्स्ट्रा एक वर्ड लिख सकते हो, ऑनर्ड। अच्छा, ये तो कलेक्शन वाले का ऑनर्ड था। उसके बाद में क्या, ये है पॉइंट नंबर डी। इफ आकाश endorsed the bill to his creditor Viren. Now this is it is a different situation. एक वीरेन है जिसको हमने बिल एंडोर्स किया सेम डे पे, कितना, 25,000। इसका जर्नल एंट्री आप लिखोगे वीरेन अकाउंट डेबिट। सो पॉइंट डी 23rd वीरेन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल बीइंग बिल एंडोर्स्ड। वेरी सिंपल। नाउ अगेन यू हैव टू थिंक, सोचना पड़ेगा, इतना भी नहीं, कि ड्यू डेट पे 26 मार्च को 2020 क्या होगा, वो वीरेन है ना, दीपक को बिल देगा। हमारे बिजनेस को नहीं छूता, दीपक इन रिटर्न उसको पैसे देगा, हमारे बिजनेस को नहीं छूता। कैन यू आकाश, आप आकाश हो ना, ये वीरेन पैसे दे, नहीं, वीरेन तो आपका क्रेडिटर है, आपको उसको पैसे देंगे, उससे उम्मीद मत रखना। यू विल नॉट गेट एनी मनी, एक पैसा, एक फूटी कौड़ी वीरेन से आपको मिलने वाला। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो ड्यू डेट पे, माफ़ी चाहता हूँ, कोई एंट्री नहीं होती है। तो वो तो सिंपल है ना, एंट्री लिखनी ही नहीं है। इन द बोर्ड एग्जामिनेशन नो एंट्री आप स्किप करोगे तो चलेगा, बट मैं ये क्लियरली बता रहा हूँ कौन कब क्या सोच के क्या एंट्री लिखता है। एट द एंड आपको ग्रैंड टोटल डालना है, जो ये वाले प्रॉब्लम में 1,50,000 है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मेरे को पूरा सिचुएशन चेंज करने दो। एक्चुअली सिचुएशन सेम रखना है, कैरेक्टर चेंज करना है, और अभी हम ड्रॉई बनेंगे। तो द क्वेश्चन क्लियरली स्टेट्स, आकाश की बुक में भी सॉल्व करना, दीपक बन के भी सॉल्व करना। तो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ दीपक। पूरी कहानी दोबारा, कैलकुलेशंस वापस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कर लिया है। अच्छा, तो वो आकाश है, ये दीपक है, हम दीपक है। सबसे पहले उसने बिल बनाया, हमने साइन करके दे दिया। आकाश डेबिट टू बिल पेएबल, आकाश डेबिट टू बिल पेएबल 25,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ये है नॉट ABCD, अभी स्टार्ट होगा ABCD। नाउ वी नो द ड्यू डेट 26 मार्च। ए ऑप्शन ऑनर हुआ। अच्छा, वो तो एक्चुअली सब में ऑनर हुआ है, अच्छा, ऑनर मतलब क्या किया हमने क्या किया, अरे हमने पैसा दिया और हमने बिल लिया, पैसा दिया बिल लिया। बिल पेएबल डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल पेएबल, this is point number A, debit what comes in and cash credit what goes out. Being bill honored on due date, point number A, simple, पैसे दिए। Now what about point number B? Well, it was like this, that Akash had discounted the bill with the bank, and to make it very simple to you, Akash is giving the bill to the bank, that is not affecting my business। ये मेरा business है ऊपर, मतलब आकाश को जो करना है करने दो यार, हमको क्या करना है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द डिस्काउंट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द जर्नल एंट्री। आई रिपीट, नहीं करना है आपको। यस, इसके बाद जो ड्यू डेट पे होता है वो आपको समझना है। अच्छा, ड्यू डेट पे क्या हुआ, वो जो बैंक है ना, वो मेरे पास बिल लेकर आया, बिल पेएबल डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला। मैंने उनको पैसा दिया,
क्रेडिट व्हाट गोज आउट। प्लीज अंडरस्टैंड, बिल पेएबल आया, कैश गया। आप इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज आप ही का बिल पेएबल आया, आप ही का कैश गया। सो आई रिपीट, ड्रॉवर अलग था, यहाँ पे यू हैव टू राइट द जर्नल एंट्री ऑन द ड्यू डेट एंड दिस इज द जर्नल एंट्री। अच्छा, पहला वाला तो नो एंट्री था, वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि वो क्यों नो एंट्री है। सेकेंड इज द ऑनर, कि भैया मैंने तो पैसे दिए, मुझको मेरा बिल मिल गया। बिल पेएबल डेबिट टू कैश, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। दिस इज पॉइंट नंबर बी, ड्रॉई के नजरिए से। पॉइंट नंबर 3 में क्या किया गया, इट वॉज गिवन टू द कलेक्शन पीपल। सो आई रिपीट, फॉर पॉइंट नंबर 3 ये कलेक्शन वालों को दिया गया, तो वो ऊपर है। आकाश ने दिया, हम बोलेंगे हमको क्या करना है, उसकी एंट्री हम नहीं करते, बराबर। और उसके बाद ड्यू डेट पे क्या हुआ, क्योंकि उसके बाद सीधा सीधा ड्यू डेट है। अच्छा, तो मैंने उनको पैसा दिया, उन्होंने मेरे को बिल दिया, सेम बिल आया, कैश गया, पेएबल आया, कैश गया। हाँ, इसके बाद ये ज़रूर है कि वो वाला बैंक कलेक्शन वाला आकाश को पैसे देता है, बट उससे भी हमको क्या करना, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन, कौन सा लेन देन आपको हिट करता है, उसकी एंट्री करो, जो नहीं करता मत करो। तो बेसिकली आपको फर्स्ट एंट्री नहीं करना है, तो मैं फर्स्ट एंट्री नहीं करता हूँ, एक्स्ट्रा काम क्यों करें। जब ड्यू डेट आया तो विच इज़ 26 ऑफ मार्च, हमने पैसा दिया, हमको पेएबल, बिल पेएबल मिल गया, सेम जर्नल एंट्री। टेक्स्ट बुक में तो उन्होंने रिपीट नहीं किया है, उन्होंने सीधा बता दिया है टेक्स्ट बुक में कि भैया सेम एंट्री है, दोबारा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। मैं क्लैरिटी पर्पस के लिए ये पूरा आपको लिख के बता रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन एंड लास्ट, आकाश ने ये बिल वीरेन को दिया। ओके, तो हम क्या करें, एक्चुअली एटीट्यूड वही होना चाहिए, हम क्या करें, तुझे देना है दे दे। ड्यू डेट पे क्या हो गया, अरे वो वीरेन को मैंने पैसे दिए, उसने मुझे बिल दिया, सेम हुआ। व्हाट इज सेम हुआ, बिकॉज व्हेन वी आर दीपक ड्रॉई, हमको कोई फर्क नहीं गिरता कि हमारे पास बिल कौन लाया, आकाश लाया, वीरेन लाया, कलेक्शन वाला लाया, हम बोलेगा बिल दो, पैसा लो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड ऑब्वियसली वीरेन आकाश को बाद में कोई पैसा नहीं देगा, अगर देता भी हमको कोई फर्क नहीं गिरता। सो फॉर अस the honor entry at the end it is the same। आपने सामने कौन खड़ा है, आकाश खड़ा है, वीरेन खड़ा है, बैंक डिस्काउंटिंग वाला खड़ा है, बैठा है, हमको क्या करना, हम बोलेगा हमको बिल दो, तुम्हारा पैसा लेके जाओ। बिल पेएबल अकाउंट टू कैश, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, एंड एट द वेरी एंड आपको ये वाले ड्रॉई का भी टोटल करना है, विच इज़ 1,25,000। सो इट इज़ वन ड्रॉवर, इट इज़ वन ड्रॉई, बट उनके बीच में जो बिल के साथ चक्कर है, क्या कर सकता है आप बिल के साथ, मैं रख सकता हूँ, नहीं मैं डिस्काउंटिंग करा सकता हूँ, नहीं मैं कलेक्शन को दे सकता हूँ, नहीं मैं एंडोर्स कर सकता हूँ, सारा। और इसका असर ड्यू डेट के ऑनर पर होता है। आज का हमारा क्वेश्चन था ऑनर, अगली बार जब मिलेंगे तो ये बन जाएगा डिसऑनर। तो बेसिकली सारा जो तामझाम है, वैरायटी, हम आज और आने वाले लेक्चर में डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जितना भी दे सकता था आप समझ गए हो। अगर समझ गए हो तो लाइक ज़रूर कर लेना, अगर आप यहाँ पे पुराने हो तो शेयरिंग ज़रूर कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।